Good morning, class 11 students. Welcome back. Today in this video, we will start with a new chapter named as Kinetic Theory of Gases. Here, basically, what we need to understand, what we need to study is that what is a real gas and what is an ideal gas, the difference between these two. And then, while doing the thermodynamics chapter, we discussed like whatever we are studying, everything we are studying for ideal gas, that is called as perfect gas. Whatever the theoretical thing we study in thermodynamics, like we studied internal energy, we studied work, we studied heat, all those things we studied with respect to ideal gas, also called as perfect gas, which is named as ideal because it is not possible in real life. In real life, the gases behave in a different manner what we study in a paper, that is theoretical. So whatever we study theoretical way, that is nothing but an ideal gas, a perfect gas, which doesn't follow the conditions what we studied in paper. That is real gas, what we do in real life. We deal with the real gas, which doesn't follow exactly all the laws what we studied theoretically. Okay, how, why, what is the changes, how they are not equal, those things we will study in this chapter. Okay, class. So let's start with what is an ideal gas. Now, you don't have to write anything in the notebook. Everything is there, the PDF. Okay, you mark from the PDF in your book and you will study from the book. All the part is marked. Everything you will study in detail from there only. Now, ideal gas is also one more name called as perfect gas. Now, what is this? And real gas क्या है? Okay. Now, when I say ideal gas, what is the meaning of ideal gas? We assume two assumptions. We take two assumptions here, which are not possible in real situations. Okay. So first possibility is that all the gas particles, all the gas molecules are very small and identical. This is a point mass. That means very small. Size is almost zero. This is one condition we take. But it is not such in real gas. There must be size. There is a particular size. They occupy certain space. But when we try to study in real life, they occupy no space. Size is zero. Next, there is no intermolecular forces. Intermolecular forces nahi hoga. No repulsion, no attraction. Why? Because we consider that ideal gas, the particles are very far from each other, that they cannot experience any or they cannot exert any intermolecular forces. Again, this thing cannot be happening in real life. In real gas, there is some intermolecular forces. A small part of this we studied when we are doing thermodynamics. Okay, in thermodynamics, when we discuss about internal energy, if you recall, if you studied the chapter thermodynamics, in internal energy we studied there are two types of internal energy, kinetic and potential. The kinetic is due to its random motion and potential is due to intermolecular forces, right? So internal energy is kinetic internal energy plus potential internal energy. But then I have told you that we will study theoretically only the ideal gas, and in ideal gas there is no intermolecular forces. That means there is no potential kinetic energy. So kinetic energy is internal energy is only kinetic internal energy, and that's why it only depends on temperature. Why? Because that time we were studying only about ideal gas. Here, why? Because there is no intermolecular forces in ideal gas. Why there is no intermolecular forces in ideal gas? That also you need to understand, because in ideal gas, the gas molecules are very far from each other. We assume it as they are very far from each other. So they cannot exert any intermolecular forces. So this is the basic difference between ideal gas and real gas. Okay. Now, what is an ideal gas equation? You studied in chemistry so many times. Ideal gas equation, also called as perfect gas equation. An equation which apply to all the gas which are ideal. That is basically P to V equals to nRT. Okay. Pressure of the gas, volume of the gas, number of moles of the gas, real gas constant, and temperature of the gas. This equation which we use in all the theoretical, whenever studying theory, any gas, we use this equation. Why? Because in theory, we are studying ideal gas. We don't consider real gas. That's why this equation is possible. If this equation cannot be applied in practical life, because in practical life we are dealing with a real gas, there this equation is not valid. Okay, now you are very much familiar with this equation. Let me discuss one more part. What is this pressure? What is this volume? What is this number of moles?
what is this real gas constant, and what is this temperature. Now, one thing special you need to understand, this real gas constant equals to Kb into Na. This you don't know. Maybe most of the students don't know about this thing. What is this R, real gas constant? What is this Kb? Kb is Boltzmann constant. And what is Na? Avogadro's number. Now, what is Avogadro's number? 6.022 10 to the power 23. Now, in case of Avogadro's number, you studied in chemistry in molar concept. In 1 mole of a gas, how many atoms are present? These many atoms are present. That is called Avogadro's number. In 1 mole of a gas, this you can write it down somewhere if you don't know chemistry nicely. So 1 mole of a gas contains this much atoms. Okay, एक 1 mole of gas में कितने atoms होंगे? इतने atoms होंगे. That is called Avogadro's number. So this R is related to Avogadro's number using Boltzmann constant or constant K. Okay, class. Now we discussed, we understood what is a real gas, what is an ideal gas, and we understand 2 important points in ideal gas. First, the size is almost zero. All the molecular size is almost zero. Next, there is no intermolecular forces. Why? Because they are very far from each other. These are the assumptions which we take when we study gases theoretically in paper. Okay, which 2 assumptions are not possible when we deal with a real life situation. That means when we are dealing with a practical applications. Practical lab में जब हम गैस के साथ डील करते हैं वो रियल गैस होता है, वायरल गैस नहीं होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे अगर मैं प्रैक्टिकल लैब में गैस के साथ डील करूं और वो गैस रियल गैस इक्वेशन को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा और कब करेगा. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई नीड टू कंपेयर ideal and real gas behavior. Ideal and real gas behavior. This I will compare. ठीक है, and I will come to a conclusion. The conclusion which I will write directly here. Okay, the conclusion is that we understand that a real gas and ideal gas are not same. They are totally different. That means they will not behave in the same pattern on the equation PV equals to nRT, right? PV equals to nRT is the equation for real gas equation, for ideal gas. But if you try to apply that equation in a real gas, it doesn't follow. Why it not follow? And when it will follow the equation, those things is my job. So the conclusion is that, the conclusion which I am trying to write here, I will write it down here. That conclusion is come after some experimental verification. Those experimental verification will study in terms of graph. Okay, but I am writing the conclusion directly that at low pressure, this is very important, and high temperature, this question comes so many times, even, okay, in the interviews. For example, the teacher is going for the interview. There also the teacher has been asked like this. At low pressure and high temperature, real gas behaves like ideal gas. Behaves like ideal gas. Okay. Ideal gas is something which is studied in paper. Understood? Which follow the PV equals to nRT equation. Real gas equation, P into volume. Pressure into volume equals to number of moles. Real gas is constant into temperature. Okay. This expression is followed by ideal gas. So when, at what condition that expression will be followed by real gas also, that condition is at low pressure and high temperature. So whenever we have any real gas, if you put it at a high temperature and low pressure, then it starts behaving like ideal gas. Why? How the scientists come to this conclusion, that we will study. Okay? So let's take one by one. The equation is PV equals to nRT. If I say temperature is constant, which is actually Boyle's law, when temperature is constant in a particular fixed amount of gas, number of moles is constant, R is a constant already, I am making the temperature also constant, then PV equals to constant. This is what? Boyle's law. Okay, but this is a Boyle's law for ideal gas, not real gas. Okay, this is a Boyle's law for ideal gas. Okay, but I am trying to use this condition in real gas, and I will see what are the graphs we are getting. So if PV equals constant, we can say pressure is inversely proportional to volume. So when they make a graph of real gas, of pressure versus volume graph, they get a graph like this. ऐसा ग्राफ मिलता है इसको, ठीक है ना? So
in the PDF all the dark line are the real gas graph. ठीक है ना? Okay. This is for temperature 1, this is for temperature 2, this is for temperature 3. Where T1 is more than, T2 is more than T3. मतलब T1 is the highest temperature and T3 is the lowest temperature. Okay. Now, try to understand what I'm trying to say. Pressure is inversely proportional to volume. Both has a power 1:1. That is, according to ideal gas, अगर मैं आइडियल गैस का ग्राफ बनाऊं वो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा. तो ऐसा नेचर किसका है? इसका है. कब है? जब टेम्परेचर हाई है. सो व्हेन द टेम्परेचर इज मोर, द रियल गैस स्टार्टेड बिहेविंग लाइक आइडियल गैस. यू अंडरस्टैंड? ओके, ये इन्होंने ऐसे करके दिखाया हुआ है. So try to understand what I'm saying. तो इस लाइन से, this is the dotted line is the graph for an ideal gas. What an ideal gas should show a graph. Okay, the ideal gas should show a graph of this type. Now this type of graph is shown by real gas at what condition? When the temperature is more. High temperature. Clear? Ideal gas, real gas behaves like an ideal gas. Next, low pressure. Now check out. This is the pressure column. Okay. For this, when the temperature is not high enough, then the real gas graph and the ideal gas graph are almost similar. But these are similars for which region? For less pressure region, when the pressure value is less. So low pressure mein, again ideal gas and real gas are showing the same behavior. So from this graph, the scientists come to a conclusion that a real gas behaves like an ideal gas when they are at high temperature or low pressure. ठीक है class? Now, next thing, if I say pressure is constant, next, I'm talking about Charles law. Okay? अभी तक हमने पढ़ा था Boyle's law, now I'm talking about Charles law. If I say pressure is constant, so what is V? nRT by P. This whole thing becomes constant. N is already a constant for a fixed amount of volume, for a fixed volume, for a fixed mass of a gas, number of moles is constant. Real gas constant is already constant. साफ साफ बोलता है pressure भी constant होगा, तो volume is proportional to temperature. Clear class? So when we draw a graph of temperature versus volume, ऐसा अगर मैं ग्राफ बनाऊं temperature versus volume का, तो they are proportional. तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. Clear class? Okay, graph ऐसा दिखेगा. For example, this is the real gas graph. T1, T2, T3. Okay, I'm not making exactly the bookish graph. Try to understand what I'm trying to show you. Okay. For example, if P1 is more than P2 is more than P3. सबसे लो प्रेशर किसका है? इसका है. तो इस केस में real gas and ideal gas will show a same behavior, but इस केस में same behavior नहीं दिखाएगा. कब दिखाएगा? देखो, see, try to understand. इस रीजन में जाके पहले अलग अलग था, दूर दूर था ग्राफ, बट इस रीजन में जाके दोनों ग्राफ नजदीक आए क्योंकि ये रीजन टेम्परेचर हाई है. So for high temperature, the real gas and ideal gas is showing same nature, and for the low pressure values, they are all the same. So low pressure and high temperature, the ideal gas, the real gas behaves like an ideal gas. Understood, class? So this is the comparison between ideal gas and real gas situations. I hope you understand what is the difference between real gas and real gas, ideal gas, the equation which we study, the laws we study. These are called gas laws actually. Boyle's law, Charles law. You studied in chemistry variously. Gay-Lussac law, okay, Dalton's law, partial pressure. These are all gas laws. These all gas laws are followed by ideal gas. They are not followed by real gas. They are followed by real gas only in this situation. Okay. The next thing we will study in this chapter is we will derive a very important expression which may come in examination or derivation. What is pressure exerted by a gas? That derivation is very important. Now, before going to the derivation, in the PDF you see there is some assumptions for kinetic theory of gases. The chapter say
kinetic theory of gases. Okay, that pressure expression which will derive now on the board. Okay, that pressure expression is called as kinetic theory of gases, because I will apply all the kinetic theory of gases there to derive the expression of pressure. So if someone say you kinetic theory of gases mathematical form बताओ, तो pressure का expression होगा kinetic theory of gases. Okay, mathematically kinetic theory of gases is pressure expression. What is the pressure expression? That pressure is half rho c square. This expression I will define. But rho is the density, c is the RMS speed. Root means square velocity of gas molecules. RMS speed of gas molecules. Okay, we will derive this expression. So what is this? This is the mathematical form of kinetic theory of gases, KTG. Okay, so we will derive this. Now before that, I will not discuss about the assumptions of kinetic theory of gases, but that is very important with respect to the theory. You may get a MCQ questions also from that. Okay, those points, there are, how many points are there? In the book there are 8 points which are marked. Okay, those 8 points you study nicely. From there, few points I am discussing right now. सबसे पहला, which I already discussed, for a particular gas, all the gas molecules are of same size. Okay? For a particular gas, all the gas molecules are of same size, but that gas molecule size will differ from gas to gas. For example, we are talking about nitrogen gas and oxygen gas. Nitrogen gas में जितने nitrogen molecules होंगे सबका size same है. Okay? बहुत छोटा है. ये सब चीज assumptions है. सेम है, बहुत छोटा है, approximately 2 angstrom का साइज के बराबर है. Okay, they are very far from each other. That means there is no intermolecular forces. Okay, they are randomly moving in all directions with certain velocity. These are different assumptions are there. Okay, they are randomly moving in all directions with certain velocity. Okay, there is no intermolecular forces because they are very far from each other. Next, when they are randomly moving with all together, they will collide with each other. That collision is elastic in nature. Very important point. That collision is elastic in nature. Okay, so these are one. If I say elastic in nature, what does that mean? Elastic in nature means what? Momentum and kinetic energy दोनों कंजर्व रहेगा. ठीक है, इसका मतलब और एक होता है, अगर एक पार्टिकल सीधा गया विद वेलोसिटी v, तो जो रिटर्न भी होगा विद वेलोसिटी v. अगर वो सीधा सीधा एक वॉल के साथ टकराया, दिस थिंग्स इज स्टडीड इन कोलिजन चैप्टर. जितने वेलोसिटी जाएगा उतने वेलोसिटी वापस आ जाएगा. दिस ऑल हैपेंस बिकॉज़ इट इज इलास्टिक इन नेचर. Clear? Understand? Okay, so these are the assumptions. Now, taking this into assumption, we will derive the pressure exerted by an ideal gas. Okay, class, now listen very carefully because this derivation is quite complicated actually. And you have to study everything from the book. So, कुछ चीजें अच्छे से पढ़ना. And when you are reading this, when you are watching this video, please side by side see from the book also, so that you understand each and every line of the book nicely. ओके ना, चलो अब हम क्या करते हैं, प्रेशर कार्य पढ़ते हैं. ये एक पहले हम रफली एक बात करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मान लो ये एक क्यूब है. ठीक है, इस क्यूब में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे हैं. तो बहुत सारे को मैं क्या करता हूं, मैं ग्रुप्स में डिवाइड मारता हूं. मान लो ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ और ये एक ग्रुप हुआ. 3 अलग अलग ग्रुप है. 3 ही क्यों लिया? देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट. ओके, क्यों 3 ग्रुप लिया? एक मॉलिक्यूल है गैस का, फॉर एग्जांपल ऑफ मास m, इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v. ठीक है, नाउ अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दिस वेलोसिटी विल हैव 3 डायरेक्शंस, vx i कैप, vy j कैप प्लस vz k कैप. तो इस वेलोसिटी का इस वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट होगा ना, vx, vy एंड vz. तो उस तरह से मैंने 3 कंपोनेंट लिया, x, y एंड z. ओके, मैं क्या मान रहा हूं, नॉर्मली कुछ assumptions मानूंगा मैं. नॉर्मली एक particular gas molecule can randomly move in all directions, right? That means whatever the gas molecules we have inside this cube, they are randomly moving in all directions. From all those gas molecules, we are dealing with that particular group which is totally moving towards x or totally moving towards y and towards z. ऐसे करके हम derive करेंगे. ठीक है, ये पहला assumption मैंने ले लिया. वो समझ में आ गया क्यों ऐसे 3 ग्रुप लिए? क्योंकि अलग अलग पार्टिकल है. ओके, नेक्स्ट, हर एक गैस का अपना अपना वेलोसिटी होगा. ये v1 तो होगा vx1, vy1, vz1. सिमिलरली और एक पार्टिकल होगा v2 तो क्या हो जाएगा vx2 i कैप, vy2 j कैप, vz2
के कैप ऐसे करके वेलोसिटीज होंगे, ठीक है। तो इन सारे पार्टिकल्स का मैं एक्स कंपोनेंट के साथ डील करूंगा। मैं ऐसा एजम्पशन लूंगा कि वो पार्टिकल डायरेक्ट एक्स की तरफ जा रहा है, दैट मींस आई एम डीलिंग विद दिस ग्रुप ऑफ पार्टिकल। किसके साथ डील कर रहे हैं? उस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं। द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। For example, this is a positive x direction, this is a positive y direction, and this is a positive z direction. So I am dealing with that group of particle which is moving towards positive x direction. इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं, उसके y component and z component of velocities में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वो इधर सीधा गया, टकराया, वापस चला गया, तो उसका सिर्फ x component में चेंजेस आएगा। y velocities में कोई चेंज नहीं आएगा। y velocity का component जिस तरफ था उसी वैसे ही है। Do you understand? In all other way around we can say उसका y component and z component zero। Imagine कर रहे हैं, है नहीं एक्चुअली, imagine कर रहे हैं because it's moving towards x direction directly, तो उसका y component zero है। Clear? Understood? But है नहीं zero, क्योंकि हम imagine कर रहे हैं we are dealing with that group of people, not people, that group of particles which are moving towards x direction. That doesn't mean it is moving directly towards x direction. We are imagining it is moving directly towards x direction, such that उसका y और z component zero है. But I will not consider zero. I will take उसका y और x component is not changing. We will consider like this. It is not changing. This assumptions you need to understand कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. ये जानना बहुत जरूरी है. Otherwise तुम्हें ये डिराइव करना आएगा ही नहीं. Okay? तो ये पहला चीज तुम्हें समझ में आ गया कि वेलोसिटीज मैंने इस तरह से लिया है. अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, कैसे डिराइव करूंगा, ठीक है. तो मुझे समझ में आ गया मैंने तीन ग्रुप में से एक ग्रुप के साथ डील किया, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डील किया जो टुवर्ड्स एक्स की तरफ जा रहा है. अब प्रेशर होता क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया. कौन सा फोर्स, फोर्स कहां से आएगा. तो जब ये गैस मॉलिक्यूल इस वॉल में टकराएगा तो कुछ फोर्स देगा ना वो, ओके. वो वाला फोर्स बाय इस वॉल का एरिया, ओके. नाउ ये फोर्स लाऊ कैसे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो आई विल सी व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम अप्लाइड इन टाइम, सम टाइम, ओके. तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं. हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, जब ये मॉलिक्यूल सब टकराएगा कितना मोमेंटम इंपार्ट किया, कितना मोमेंटम दिया वॉल को, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लेंगे. उस टाइम में कितना मोमेंटम दिया, कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, दैट चेंज इन मोमेंटम बाय दैट टाइम इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज प्रेशर. दिस इज माय ओवरऑल जॉब इन दिस होल डेरिवेशन. क्लियर, ओके. अब मैं पूरे ग्रुप के साथ एक साथ तो डील नहीं कर सकता, तो मैं उस ग्रुप में एक मॉलिक्यूल के साथ डील करूंगा. पहले मैं देखूंगा उस मॉलिक्यूल ने कितना मोमेंटम दिया, ओके. फिर मैं उस पूरे ग्रुप के साथ डील करूंगा एंड देन आई विल कम टू अ कंक्लूजन. फिर एक ग्रुप के साथ डील हो जाएगा, देन आई विल डू एन एवरेज ऑफ ऑल द थ्री ग्रुप्स टुवर्ड्स एक्स, टुवर्ड्स वाई, टुवर्ड्स जेड, वन बाय वन. I hope you understand little bit what is my job. We have to find pressure. Pressure is force by area. How to find force? According to Newton's second law, force is rate of change of momentum. So we have to see what is the change in momentum to the wall. Okay, वो wall में कितना change in momentum हुआ और कितना time में हुआ. If from there we can get the force divided by area, we will get the pressure. But whatever I will do here, this everything I will do for a particular group of particles which are moving towards positive x direction. Okay. उसमें भी मैं एक बार में पूरे ग्रुप का मोमेंटम चेंज नहीं निकाल सकता, मैं एक मॉलिक्यूल का निकालूंगा एंड देन वी विल गो टू द ग्रुप. Okay, class. So this is the overall idea about the whole derivation. Now let's start the derivation. Okay, now see what we considering. We considering a coordinate axis x, y, and z like this. Okay, x, y, and z. इसमें मैं एक क्यूब ले रहा हूं. Of length L. For example, this is a cube of length L. एक साइड का लेंथ क्या है, L है. ठीक है क्लास. Okay, now we are each gas particle has a mass m. जो सब लिखेगा, everything is in the book.
एक मास m है and we are dealing with that group of particle which is moving towards positive x direction. Clear? From that group of particle, let's consider one particle of mass m. ठीक है. So इस mass m का तीन velocity होगा vx, vy and vj, and is moving towards positive x direction. That means y and z will have no changes after the collision. ठीक है. So for example, this is a particle. Okay, I will see ये कितना momentum देगा to the wall. How much will be the momentum, change in momentum given to the wall? Okay, after hitting. So for example, it is moving in this direction with velocity vx. So after rebound, it will go directly return back like this with how much velocity? Minus vx. Why minus vx class? ये towards negative x की तरफ चला जाएगा. ओके, ऐसे नीचे नहीं आ रहा, ऐसे चला जा रहा है. तो वी कैन से लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे चला गया विथ हाउ मच वेलोसिटी माइनस vx. क्यों? बिकॉज इट इज इलास्टिक इन नेचर. द कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर. तो वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएंगे बेटा. क्लियर? हाँ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. दैट मींस y z का भी कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो इस पार्टिकल का, गैस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी vx है और फाइनल वेलोसिटी माइनस vx है. सो ड्यूरिंग दिस कोलिजन दिस particle has some change in momentum, so we will have change in momentum of the gas particle. कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम इस तरफ जा रहा है तो माइनस mvx, इनिशियल मोमेंटम उस तरफ जा रहा है mvx. साइन कन्वेंशन यूज किया. ओके, नेगेटिव एक्स की तरफ नेगेटिव. सो व्हाट आई गॉट? माइनस 2 mvx. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस. ठीक है क्लास? नाउ इफ दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस, then what is the change in momentum of the wall? So this is the change in momentum of the wall imparted plus 2 mvx towards positive x direction. Okay, गैस का towards negative x direction में momentum change आया, तो इतना momentum उसने वॉल को दिया है according to Newton's third law. Okay, तो वो किस तरफ दिया? ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया होगा, plus 2 mvx. This is the momentum change because I need to find the pressure on the wall. तो pressure on the wall में मुझे force on the wall निकालना पड़ेगा. Force on the wall में change in momentum on the wall निकालना पड़ेगा. So this is the change in momentum on the wall which is towards positive x direction. Clear? Plus 2 mvx. Do you understand? Okay. Now ये किसका था? ये जो momentum आया ये कौन दिया? By one molecule. Clear? By one molecule. Now to find pressure, we need force by area. To find force, we need rate of change of momentum by time. So we need to fix a particular time now. Clear? मुझे particular time fix करना है. So let I am saying del t time. Okay, let del t time में कितना momentum impart हुआ wall को. तो ये जो momentum आया था, ये किसका आया था? एक पार्टिकल का आया था, राइट? किसका आया था? एक पार्टिकल का momentum आया. इतना चेंज हुआ माइनस 2 mvx टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. मतलब वॉल को उतना ही मोमेंटम मिला होगा लेकिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मिला होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, देखिए ये जो मोमेंटम आया वॉल को वो एक पार्टिकल ने दिखा. लेकिन अब मुझे अगर फोर्स निकालना है तो मुझे एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, एक टाइम इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा. सो लेट द टाइम इंटरवल इज डेल टी. तो अब मैं देखूंगा कि डेल टी टाइम इंटरवल पे कितना मोमेंटम आ रहा है. क्लियर? अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इसको ध्यान से समझना है. ये नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से वी हैव फिक्स अ पर्टिकुलर टाइम डेल टी. अब मुझे देखना है कि डेल टी टाइम में कितना मोमेंटम वॉल को मिला. लेकिन मुझे क्या पता है? क्या मुझे टाइम के साथ मोमेंटम पता है कि एक कोलिजन के साथ पता है? मुझे पता है एक कोलिजन हुआ तो इतना मोमेंटम होगा. क्लियर? तो मुझे टाइम के साथ कुछ रिलेशन पता ही नहीं है, तो डेल टी टाइम में मुझे देखना पड़ेगा कितना कोलिजन हुआ. डू यू अंडरस्टैंड? ये समझना बहुत जरूरी है. जितना कोलिजन होगा इनटू एक कोलिजन का मोमेंटम. एक कोलिजन में इतना मोमेंटम गया वॉल को, तो अगर मुझे नंबर ऑफ कोलिजन मिल जाए इन टाइम डेल टी तो हो जाएगा. सो माय मेन एजेंडा इज टू फाइंड आउट हाउ मेनी कोलिजन्स मे हैपन, हाउ मेनी कोलिजन्स मे हैपन इन टाइम डेल टी. क्लियर? अब ये कैसे पता करूं, ये ध्यान से सुनो. इसको ही समझना थोड़ा ट्रिकी पार्ट है क्लास. सो दिस इज द वॉल. ठीक है,
मैंने कौन सा टाइम इंटरवल फिक्स किया? डेल टी टाइम इंटरवल फिक्स किया। और वेलोसिटी का, एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? vx है। तो डेल टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? vx इंटू डेल टी। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t। ठीक है, इसका मतलब इस वॉल से अगर d डिस्टेंस, मतलब vx डेल टी डिस्टेंस में कोई भी अगर पार्टिकल हुआ, इस डिस्टेंस में जो भी पार्टिकल होगा वो टकराएगा वॉल के साथ इन टाइम डेल टी। ये समझ में आया? ये बुक में अधिक तरह से लिखा हुआ है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड से। मैंने एक टाइम टेबल फिक्स किया डेल टी। मुझे इस डेल टी टाइम में देखना है कि कितना मोमेंटम वॉल में आया। मोमेंटम मतलब कितना कोलिजन हुआ। ओके, कोलिजन कौन करेगा? पार्टिकल्स करेगा, गैस पार्टिकल्स। तो गैस पार्टिकल्स कितने दूरी में हो कि वो डेल टी टाइम में कोलाइड करे। तो मैं चेक कर लेता हूं कि डेल टी टाइम में एक गैस पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, वेलोसिटी टाइम इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है डेल टी टाइम। तो मतलब इतना डिस्टेंस दूरी पे अगर रहा वॉल से तो आराम से वो टकराएगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? वो टकराएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब मुझे मतलब ये समझ में आ गया कि यहां से डेल टी टाइम डिस्टेंस में, vx डेल टी टाइम डिस्टेंस में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे टकराएंगे इन टाइम डेल टी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मान लो ये एक फ्लैग पोस्ट है। ठीक है, एक आदमी यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मैं बोलूं 2 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा? 20 इंटू 2 40 मीटर चला जाएगा। इसका मतलब 40 मीटर डिस्टेंस पे जो भी आदमी होगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, जो भी इधर हुआ वो सारे फ्लैग पोस्ट में चले जाएंगे ना 40 मीटर की दूरी में। चाहे वो आदमी यहां पे हो तब भी चला जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 मिनट्स में, 2 सेकेंड्स में, ओके, और सॉरी 20 मीटर, 2 सेकेंड्स में हर आदमी 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड में चल रहा है। मतलब 2 सेकेंड में हर एक आदमी 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो मतलब मैक्सिमम ये आदमी 40 मीटर दूरी में है, तो एग्जैक्ट 2 सेकेंड के एंड में ये पहुंचेगा, लेकिन उसके पहले ये पहुंच जाएगा, फिर ये पहुंच जाएगा, फिर ये पहुंच जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं क्लास? मतलब ये सारे आदमी जो 40 मीटर के अंदर रहेंगे सारे पहुंच जाएंगे ना 2 सेकेंड में। हाँ, कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, दिस इज द डिफरेंस। लेकिन पहुंचेगा तो जरूर ना। समथिंग लाइक दैट वी आर डूइंग here also with the gas particles. So if I fix the time del t, then from the wall with a distance of vx del t, we have all those particles will hit this wall. Okay, so that distance, what I'm saying is this. For example, इस वॉल से ये जो डिस्टेंस है वो है vx del t और टोटल लेंथ l है। ये है vx l t। ओके क्लास, इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो डिस्टेंस है vx del t, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे हिट करेंगे। ओके, लेकिन ये एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा ना, ऐसे करके एक अलग सा क्यूब बनेगा ना, ऐसा करके क्लास। उस क्यूब का जो साइड होगा vx del t, उस क्यूब के अंदर जितने, उस वॉल्यूम के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे हिट करेंगे। मैंने अभी तक डिस्टेंस के साथ डील किया था, अब मैं क्यूब में घुस गया बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सही बात। अभी तक मैं डिस्टेंस के साथ डील कर रहा था, अब मैं क्यूब में घुस गया फटाक से। सो लेट मी मेक दैट क्यूब फॉर यू। अरे यार क्या हो गया मेरे को? ओके, ये था वॉल। ये वॉल से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है vx del t। ठीक है ना क्लास? ओके, इस वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे टकराएंगे। ओके, और एक कोलिजन से मुझे कितने मोमेंटम मिलते हैं? +2 mvx। सो नाउ आई हैव टू सी, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना कोलिजन होगा और उतना मोमेंटम आएगा।
तो अब मुझे पहले मैंने बोला था कि इन टाइम डेल टी कितना मोमेंटम मिलेगा, तो टाइम के साथ मोमेंटम का कोई रिलेशन नहीं है, हाँ कोलिजन के साथ है, एक कोलिजन में इतना मोमेंटम आता है। तो अब मुझे देखना है कितना कोलिजन होगा टाइम डेल्टी में। तो मैंने बोला डेल्टी टाइम में जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे टकराएंगे, दैट मींस जितने पार्टिकल्स यहाँ पे है वो उतने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। सो आई विल सी हाउ मेनी कोलिजन्स इज पॉसिबल हियर। Am I clear? So if I say n is the number of molecules per unit volume, number of molecular density इस पूरे क्यूब के अंदर n is the number of molecules per unit volume, तो इस वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल होगा ये जानना है मेरे को, ठीक है ना। तो ये हो गया लेंथ, ओके, n is the number of molecules per unit volume मिल गया मेरे को। तो अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया, तो मैं यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है वो जानना जरूरी है। हाउ टू फाइंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, दैट इज माय जॉब। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल है। इतना समझ में आ रहा है क्लास के नहीं आ रहा है? ओके, तो हम क्या करेंगे, सो वी नो दिस इज द एरिया ए, ओके, एरिया ऑफ दिस वॉल। इफ आई सी दिस एरिया इनटू लेंथ, दिस एरिया इंटू दिस लेंथ, तो मुझे पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम बिकॉज एरिया इंटू लेंथ, व्हाट इज द लेंथ हियर, डी, दैट इज एरिया इंटू वीएक्स डेल टी। ये समझ में आ गया, दिस इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अंडर द लेंथ वीएक्स डेल टी। ओके, इंटू एन कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which will hit the wall in time del t will be equals to number of molecules per unit volume into volume of that part Vx del t। ये बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो वापस सुन लें, ठीक है। मुझे देखना है कि डेल टी टाइम में कितना कोलिजन हो रहा है। मुझे पता है एक कोलिजन में इतना मोमेंटम आता है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ कोलिजन्स मिल जाए इन टाइम डेल टी, तो मुझे कितना मोमेंटम वॉल को मिल रहा है ये पता चल जाएगा। ये मैंने अलग से पकड़ लिया। अब डेल टी टाइम में कितना कोलिजन होगा कैसे पता चलेगा, तो डेल टी टाइम में जितने पार्टिकल्स हिट करेंगे उतना कोलिजन हुआ। तो डेल टी टाइम में कितने पार्टिकल्स हिट करेंगे, तो डेल टी टाइम में वो सारे पार्टिकल्स हिट करेंगे जो इस वॉल्यूम के अंदर है। कैसे पता चला कि डेल टी टाइम में एक पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इतने डिस्टेंस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे हिट करेंगे। तो मुझे पता चल गया इस वॉल्यूम के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे हिट करेंगे। तो मुझे पता करना है कि इस वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। तो उसने मुझे पार्टिकल डेंसिटी दिया हुआ, मॉलिक्यूलर डेंसिटी दिया हुआ है कि n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ये पूरा वॉल्यूम इंटू कर दूंगा। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू दिस लेंथ। ओके, ये लेंथ से इंटू कर दिया मैंने, एरिया इंटू डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस। तो यहां से मुझे वॉल्यूम मिल गया, और इस वॉल्यूम को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट ऑल दोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच विल हिट द वॉल इन टाइम डेल टी। तो इन टाइम डेल टी यहां पे जितने पार्टिकल्स है सब हिट करेंगे, इतने सारे पार्टिकल्स हिट करेंगे। क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड क्लास? सो इतने सारे पार्टिकल्स हिट करेंगे। नाउ अगेन एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने 4 पार्टिकल का साथ डील किया, 1 2 3 4। एक है डायरेक्टली Vx डेल टी से, तो ये हिट करके जब तक डेल टी टाइम होगा, ये तो डेल टी टाइम में ठीक एग्जैक्टली यहां पहुंचेगा, लेकिन ये तो वापस चला जा रहा होगा, ये भी तो वापस जा रहा होगा ना, ये हल्का सा वापस जा रहा होगा, ये हिट करेगा। तो इन डेल टी टाइम में कोई हिट करके सीधा हिट कर रहा है, कोई हिट करके वापस जा रहा है। दैट मींस फ्यू पार्टिकल्स आर हिटिंग और फ्यू पार्टिकल्स आर कमिंग बैक। So on an average, we say number of particles will be half divided by 2। ये समझ में आ गया? मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ ले लिया। क्यों ले लिया हाफ, क्योंकि इन दैट टाइम डेल टी few particles will be going towards the wall and few particles will be coming after hitting। तो एवरेज में मैं हाफ ले रहा हूं, क्योंकि पूरा हिट ऑल द पार्टिकल्स विल नॉट डू। ठीक है ना, कुछ बाहर आ रहे होंगे, कुछ जस्ट पहुंचे होंगे, हिट नहीं किए होंगे, पहुंचे होंगे। ऑन एवरेज दिस, therefore what is the total momentum imparted? Total momentum imparted to wall
इन टाइम डेल टी। तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ टाइम डेल टी में? एक मोमेंटम ने इतना, एक कोलिजन ने इतना मोमेंटम दिया, तो कितने कोलिजन हुए? जितने मॉलिक्यूल्स हुए। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NaVx डेल टी बाई 2 इंटू एक कोलिजन ने कितना, ये समझ में आ गया? ये हुआ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन एवरेज, जितने मॉलिक्यूल्स उतने कोलिजन होंगे। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन एवरेज इनटू मोमेंटम इंपार्टेड इन वन कोलिजन। तो ये कर दिया ऐसे करके। सो व्हाट आई गॉट mNa del t Vx square. So this is the momentum imparted in time del t. So we got momentum. So what is pressure? Pressure is force by area. What is force? Force is rate of change. या हड़बड़ी ना करके बेटा थोड़ा गड़बड़ी करते हैं। सो प्रेशर, मुझे प्रेशर निकालना, फोर्स निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंजिंग मोमेंटम कितने टाइम में मैंने चेंजिंग मोमेंटम निकाला? डेल टी टाइम में। तो डिवाइड मारो तो कितना आ जाएगा? mNa Vx स्क्वायर। ओके, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, into area Vx square. This is the force. Therefore, what is pressure now? Pressure is force by area. Area cut जाएगा, तो finally we get mNVx square. So this is the pressure we got. So I am taking this as pressure of that group of molecules which is towards x direction. Px. मैं इसको Px बुक से अलग कर रहा हूं, Px नाम दे रहा हूं, mNVx square. ठीक है क्लास? अंडरस्टूड? तो मेरे को प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल गया, mNVx स्क्वायर प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया। बट ये तो मैंने उन पार्टिकल्स के साथ डील किया जो टुवर्ड्स एक्स की तरफ जा रहे हैं, राइट? वो भी आई हैव टेकन एन एजम्पशन वी आर डीलिंग विद ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल जिसका सिर्फ Vx की तरफ वेलोसिटी है, बाकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्लास? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ये कौन सा प्रेशर आया? प्रेशर ड्यू टू दैट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर? अब ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, राइट? एक पार्टिकल तो होगा नहीं, बहुत सारा पार्टिकल होगा। तो अगर बहुत सारा पार्टिकल होगा तो ये जो Vx है, ये जो Vx है, ये किसका वेलोसिटी है? व्हाट वाज द Vx? सी व्हाट वाज द Vx? एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी। क्या जितने पार्टिकल एक्स की तरफ जा रहे हैं क्या सारे का वेलोसिटी Vx ही होगा? नहीं। मैंने क्या माना है? मैंने माना है वी आर डीलिंग विद दैट पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बट आई डिड नॉट से ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम वेलोसिटी Vx, दे विल हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी। ओके, तो ये V1 था, इसका Vx1 i कैप था, ये Vx2 j कैप था, ये Vx3 k कैप था, इसका V2 Vx2 i कैप, Vy1 एंड Vz1, ये हो जाएगा Vy2 j कैप, Vz2 k कैप। ये ध्यान से सुनना, ऐसे करके करते करते Vn पार्टिकल होगा, Vxn I कैप प्लस Vyn j कैप प्लस Vzn k कैप। ठीक है? तो ये जो Vx1, Vx2, Vxn सब अलग अलग है ना, तो इनका सिंस सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3, मैंने यहां से मैंने क्या एजम्पशन लिया कि सारा पार्टिकल जो एक्स की तरफ जा रहा है उन सब का वेलोसिटी Vx है। क्या ये रियल लाइफ में होता है? नहीं। सारे पार्टिकल जो एक्स की तरफ जा रहे हैं मान लिया, लेकिन क्या सारे का पार्टिकल का एक्स की तरफ डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होएगा? नहीं, अलग अलग होगा ना, Vx1, Vx2, Vx3। इसलिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक एन एवरेज mn Vx बार होल स्क्वायर। ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं है? बताओ मेरे को। मतलब मैं इनका एवरेज लूंगा। एवरेज मतलब क्या? Vx1 होल स्क्वायर प्लस Vx2 होल स्क्वायर, Vx3 होल स्क्वायर, ऐसे करते करते डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं आरएमएस वैल्यू निकाल रहा हूं ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? उसको
एक्स स्क्वायर बार लेंगे तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए वी एक्स स्क्वायर बार। ओके, तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बार, मतलब इंड्यूस वेलोसिटी को स्क्वायर किया, मीन किया। ठीक है, वी एक्स स्क्वायर बार इंड्यूस वेलोसिटी को क्या किया मैंने, स्क्वायर किया और मीन किया। सो इन अ बुक आफ्टर दिस इज एक्सप्रेशन रिटन एंड व्हाट द स्टेटमेंट दे आर रिटन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। Since all the particles will have different velocities, what I'm trying to say you are, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं जो बोला वो बुक में लिखा हुआ है। ओके, आई एम नॉट रीडिंग द बुक लैंग्वेज, आलसी लग रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील किया जो कि एक्स की तरफ जा रहा है। मैंने इमेजिन कर लिया कि सारे के सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी भी एक्स है, तभी तो इंटू कर दिया। देखो, ऑल द पार्टिकल्स इंटू मोमेंटम चेंज। क्या ऐसा जरूरी है? कभी जरूरी नहीं है, ये तो सिंप्लिसिटी के लिए, डिराइव करने के लिए मैंने किया। तो उसमें फिर वापस मुझे रियल लाइफ सिचुएशन में जाना पड़ेगा ना। तो ये तो मैंने वी एक्स स्क्वायर ले लिया था, मैंने मान लिया कि सारे पार्टिकल का वेलोसिटी भी एक्स है जो एक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो एक्स की तरफ जा रहे हैं सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी एक्स की तरफ अलग अलग होगा ना। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं वी एक्स स्क्वायर बार। ओके, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जैसे मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, वी एक्स स्क्वायर बार, ये समझ में आ गया? ओके, अब ये था, ये फाइनली आ गया वो वाला प्रेशर। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास वन से मैंने पूरा डेरिवेशन कैसे किया। मैंने उस ग्रुप के साथ डील किया जो एक्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने एक पार्टिकल ले लिया जिसका वेलोसिटी वी एक्स है टुवर्ड एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन वी वाई है, जेड डायरेक्शन वी जेड है। तो जब वो कोलाइड किया उसका सिर्फ एक्स की कंपोनेंट चेंज हुआ, वाई और जेड चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इट्स इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, सब कुछ यहां तक ठीक था। लेकिन जैसे मैंने ये इंटू कर दिया, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सारे के सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी भी एक्स है, जरूरी नहीं है ना, इसलिए यहां से यहां आया, एवरेज कर दिया सारे पार्टिकल्स का, एक्स का वेलोसिटी का एवरेज देके मैंने वो वाला वैल्यू लिख दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वेलोसिटी, आई एम राइटिंग एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। क्लियर? अब ये आ गया प्रेशर ड्यू टू दैट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स which are moving towards x direction, taking the real life situation that all the velocities are different x components. Clear? लेकिन अब भी पूरा काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उस एरिया में, इस वॉल्यूम में there are two different group of particles also which are moving towards y and moving towards x, right? है ना? तो there is, ये कौन सा आ गया vx। वैसे vy स्क्वायर का भी तो बाहर आएगा, vy1 होल स्क्वायर, vy2 होल स्क्वायर, ऐसे करते करते डिवाइड बाय। वैसे जेड कंपोनेंट का भी तो एक मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगा, vz1 होल स्क्वायर, vz2 होल स्क्वायर, ऐसे करते करते डिवाइड बाय। ओके, ऐसे करके आएंगे। डन। अब गैस इज आइसोट्रोपिक। जो आइडियल गैस होता है बेटा वो आइसोट्रोपिक होता है। आइडियल गैस इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब क्या? उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा डिफरेंट डायरेक्शंस में वो सेम होगा। दैट मींस वी स्क्वायर बार, वी वाई स्क्वायर बार एंड वी जेड स्क्वायर बार दे आर इक्वल, क्योंकि वो आइसोट्रोपिक है। वी आर इमेजिनिंग वी दैट रियल आइडियल गैस जो है वो चारों तरफ जब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं, इंडिविजुअल वेलोसिटी सब अलग अलग है बेटा, सब अलग अलग है। टुवर्ड्स एक्स सारे पार्टिकल का अलग अलग है, टुवर्ड्स वाई सारे पार्टिकल का अलग अलग है, टुवर्ड्स जेड सारे पार्टिकल का अलग अलग है, लेकिन जब एवरेज करते हैं तब उनका सेम आता है। ये है आइसोट्रोपिक मतलब। ठीक है। नाउ फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस, फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी डू नॉट वर्क विद दीज वेलोसिटीज। ठीक है, वी वर्क विद द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द gas. So what is that actual velocity? That actual velocity is v1, v2, v3. ये सारे वेलोसिटीज चेंज होंगे, तो इन वेलोसिटीज को जोड़ने वाला वेलोसिटी को बोलता हूं मैं c, दैट इज RMS वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? पहले स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वायर किया, फिर मीन करो डिवाइडेड बाय, फिर रूट लगाओ।
स्क्वायर मीन रूट, पहले स्क्वायर किया फिर मीन किया, प्लस करके डिवाइड नंबर टर्म्स, फिर रूट लगा दिया. दिस इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी. समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोलना चाहूँ? दिस इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी. अब यहां से यहां जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब चीज बुक में नहीं लिखा हुआ है, सो ये चीज को समझो अच्छे से. बुक में डायरेक्टली ये 3 इक्वल क्यों है ये समझ में आ गया. ओके, ये इक्वल्स टू कुछ आएगा, वो कहां से आएगा दैट आई एम शोइंग. दिस यू मे राइट इन योर नोटबुक. ओके, तो मैं ये रब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. अब अगर मैं इसको v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर करूं तो व्हाट इज v1? कैन आई से अंडर रूट vx1 होल स्क्वायर vy1 होल स्क्वायर vz1 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू वेक्टर फंक्शन. v1 इज अंडर रूट दिस, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो vx1 स्क्वायर vy1 स्क्वायर vz1 स्क्वायर ऐसा आएगा. तो कैन आई से c इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना बेटा, vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर. ऐसे करते करते v2 का भी आएगा, ऐसे करते करते vn का भी आएगा. तो कहने से vxn स्क्वायर प्लस vyn स्क्वायर प्लस vzn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको c स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा. तो यहां से vx1 vx2 vx3 सब एक साथ लिखो, vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर, ऐसे करते 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 vxn स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय n प्लस y को कॉम्पोनेंट इक्वल करो vy1 स्क्वायर, ऐसे करके सेकेंड पार्टिकल का vy2 स्क्वायर, ऐसे करते vyn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. सिमिलरली ऐसे करते करते vz1 स्क्वायर करते करते vzn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ऐसा आ जाएगा ना बेटा. व्हाट इज दिस? कैन आई से इट इज vx स्क्वायर बार, जो मैंने शुरू में पढ़ाया. दिस इज vx स्क्वायर बार. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का x डायरेक्शन का वेलोसिटीज का मीन, स्क्वायर का मीन, सो स्क्वायर का मीन. सिमिलरली vy स्क्वायर बार, सिमिलरली vz स्क्वायर बार. ठीक है, दैट इज योर c स्क्वायर. और ये तीनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू आइसोट्रोपिक. तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 3vx स्क्वायर बार. ठीक है, तो व्हाट इज vx स्क्वायर बार? c स्क्वायर बाय 3. तो ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है c स्क्वायर बाय 3, इसका वैल्यू c स्क्वायर बाय 3 आ जाता है. कहां से आता है वो बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, सो दैट आई एम टीचिंग हियर कि वो c स्क्वायर बाय 3 कैसे आया. ओके, अब please pause the video, note down these things in your notebook somewhere so that you can remember. These things you don't need to do in an examination. तुम एग्जामिनेशन डायरेक्ट कैसा लिखना है, मैंने इसे बताया कि कैसे आ रहा है. ओके, ना अब थोड़ा वापस रिकॉल करते हैं क्योंकि ये चीज करते 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 हम सब कुछ भूल गए. मैंने सबसे पहले रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया? मैंने उस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डील किया जो कहां काम कर रहे हैं, एक्स की तरफ जा रहे हैं, और मैंने उनमें से किसी एक पार्टिकल को लिया, उसका कोलिजन किया, उसका वेलोसिटी vx लिया, उसका कोलिजन किया, उसका चेंज इन वेलोसिटी निकाला, मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला, और फिर मैंने देखा कि ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द डिस्टेंस दिस, हाउ मेनी कोलिजन्स आर पॉसिबल. Then I'm multiplying with each collision momentum. Here I am doing an assumption. मैं मान ले रहा हूं कि सारे के सारे पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का सेम वेलोसिटी vx है, और उस एज्यूम्शन के साथ मेरे पास एक वेलोसिटी का, एक प्रेशर का एक्सप्रेशन है. बट ये प्रेशर का एक्सप्रेशन रियल लाइफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि रियल लाइफ में सारे मॉलिक्यूल्स का एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा. इसीलिए मैंने इसको इस पे चेंज कर दिया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? ओके, अब मैं यहां से यहां क्यों जा रहा हूं? अभी भी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मैंने सिर्फ उसी ग्रुप के साथ डील किया जो सिर्फ एक्स की तरफ जा रहा है. वैसा ही एक ग्रुप वाई की तरफ जा रहा होगा, वैसा ही एक ग्रुप जेड की तरफ जा रहा होगा. तो इनको समअप करने के लिए हम ये कर रहे हैं. सो वी आर नॉट डीलिंग विद इंडिविजुअल components velocity, we are dealing with actual velocity of gas v1 v2 v3 instead of vx1 vy1 vz1. we are dealing with v1 v2 v3. ओके, तो अगर मैं सारे ग्रुप को एक साथ लूं तो सारे ग्रुप का वेलोसिटी सेम होता है, मतलब प्रेशर यही रहेगा. समझ में आ गया? सारे ग्रुप का वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आइसोट्रोपिक है ना, टुवर्ड्स एक्स वाई जेड सेम रहेगा. सो नाउ इफ आई कंसीडर ऑल द वेलोसिटीज of all the molecules moving in different directions, then the pressure will be equal to mn c square by 3. In the place of vx square bar, I can write c square by 3. So finally, this is the formula 1 by 3 mn c square. Clear? So this is the final expression of the pressure considering
all the real life situations, considering all the particles moving randomly in all directions with the velocities v1, v2, v3, v4. Clear? Okay. Now, what is m? Mass of one particle. What is n? Number of molecules per unit volume. Like there are n molecules in total volume v. Okay. So what is 1 by 3 है ना भैया 1 by 3. So what is this Mn? Mass of one particle, one molecule into number of molecule. Can I say it is total mass of the gas by V c square. So finally we got 1 by 3 rho c square. ये mass of one molecule है, ये total number of molecule आ गया. If I consider 1 gram mole, तो can I say this will be Avogadro's number? 1 gram mole लूँगा, तो 1 gram mole में तो Avogadro's number is the number of molecules. The number of molecules by total volume is number of molecules by total volume. This is number of molecules per unit volume. Okay, m into n. एक molecule का mass into total number of molecules. The total mass of the molecule. Total mass of the molecule is nothing but total mass of the gas. Gas में जितने molecules उसका mass equals to gas का mass. So m mass by volume is nothing but rho. So this is the final expression of pressure. 1 by 3 rho c square. Okay, class. So this derivation has taken almost more than 30 minutes, most probably. More than 25 minutes. Okay. So I hope you understand what is this derivation is all about. Okay, class. Let me close this video here only. Okay. There are many more things related to this topic we'll study in the next video. That's all, class. Thank you very much.